اس کا دروازہ ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کوئی سا بھی سلسلہ ہو لیکن وہ مولا علی پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا کی شان، اب آئیے امام حسین کی والدہ کی شان دیکھیں۔ اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسین کے والد تمام ولیوں کے سردار، امام حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، امام حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، امام حسین کے بھائی امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار، خود امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایسا مقدس گھرانہ ہے میرے آقا حسین کا، ایسے مقدس گھرانے میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو امام حسین کا مرتبہ بتاتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے نبی کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو تھوڑی دیر میرے نبی واز فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ میرے نبی مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ مولا علی شیر خدا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت علی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا کہ نبی کسی اور کے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ میرے نبی پہنچے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں اور تم دروازے پہ رہو، جب تک میری اجازت نہ ہو کسی کو اندر آنے مت دینا۔ مولا علی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ نے امام حسین ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، میرے نبی کی آغوش مبارک میں دے دیا۔ میرے نبی حسین کے کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے مقدس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ آ گئے، حضرت علی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک نبی کی اجازت نہیں ہوگی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار ہمیں اجازت دے دے، آج تیرے محبوب کے گھر میں محبوب آیا ہے، آج تیرے محبوب کے گھر میں اس کا لاڈلا حسین آیا ہے، کہ ہم کیوں نہ اسے مبارکباد دینے کے لیے جائیں۔ حسین کی آمد کی مبارکباد ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مبارکباد دینے تو جا رہے ہو، پہلی مبارکباد ہماری ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو ساتھ میں لیتے ہیں، میرے نبی کے مکان میرے نبی کے لاڈلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے مولا علی شیر خدا کے مکان پہ تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر آ رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزماں کے یہاں پر، آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر، آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانے گی، جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے
کرے گی۔ آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو۔ ایک فرشتے نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھالا۔ نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرات گرامی امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا، میری نظر ایک دن زمین پر پڑی، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے، اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں، نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے پیر میں پولیا ہے تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مرتبے تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس میرے بندے کا کیا مرتبہ ہے، اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ فرشتے نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے آقا آج نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، میرا رب بھی خوش ہے، آج فرشتے بھی خوش ہیں اور آج صحابہ کرام بھی خوش ہیں۔ یا رسول اللہ آج نواسے کی آمد پر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مانگ، آج میرا نواسا آیا ہے، آج میرا شہزادہ آیا ہے، مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ اس فرشتے نے کہا آقا میں آج کچھ اور نہیں مانگنا چاہتا ہوں، حسین کی آمد کی خوشی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے پروردگار میرے ہاتھ اور پیر دونوں واپس کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا بس اتنا سا۔ میرے نبی نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے، جو جس چادر میں حسین لیٹے ہوئے تھے اس چادر کا ایک کنارہ اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر مس کر دیا۔ قسم خدا کی اس کے ہاتھ بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کے پیر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ امام حسین جس کی چادر کا ایک کنارہ اگر فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر لگ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ جائیں۔ اللہ اللہ وہ امام حسین ہیں، فرشتے کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ گئے۔ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، تقریباً 1,40,000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کو اجازت ملی کہ اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام اندر آ رہے تھے۔ حضرت گرامی امام حسین کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں، صدیق اکبر مبارکباد دے رہے ہیں، فاروق اعظم مبارکباد دے رہے ہیں، عثمان غنی مبارکباد دے رہے ہیں۔ علی گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو، فاطمہ گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو۔ حضرات گرامی وہ فرشتہ جس کے ہاتھ اور پیر واپس آئے تھے سب خوشی منا رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا آقا آج جس نواسے کی آمد پر اتنی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، جس نواسے کی آمد پر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، جس نواسے کی آمد پر صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں، اسی نواسے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے، اس نواسے کو آپ کا نام لینے والے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کیسی بات کر رہا ہے؟ ابھی میرا لاڈلا پیدا ہوا ہے، ابھی میرا نواسا اس دنیا میں آیا ہے، ابھی میرے
नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी, कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जो जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरात इकरामी, ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरात इकरामी, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस फरिश्ते को कैसे पता चला? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, आका इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने, तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है हुसैन की। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। हज़रात, अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे? नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है, सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हजरात गिरामी, ये शान है इस मुकद्दस घराने की। बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात गिरामी, ये घराना बड़ा ही अजीम घराना है, लेकिन मेरे नबी ने कभी दुआ नहीं की मौला मेरे बेटे से आजमाइश को दूर फरमा दे। मेरे नबी के दस्ते मुबारक एक दुआ के लिए दराज हुए थे, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरे बेटे हुसैन की रजा है। ए मेरे परवरदिगार, जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में अपना इम्तिहान दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज करने के लिए, हज करके जब मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे आका हुसैन उससे मिलने के लिए गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से मिलने गए थे। उस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे।
حضرات उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा लाओ क्यों ना अमीर मुआविया का बेटा आया है, लाओ क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। ये जालिम मदीने में पहुंचा हुआ था, वहां पर इसने यमन से शराब मंगा करके पी थी। अल्लाह अकबर। जिस शराब के बारे में नबी ने फरमाया हराम है, आज उसे एक सहाबी का बेटा पी रहा है। जिना के बारे में नबी ने फरमाया कि जिना हराम है, उसे एक सहाबी का बेटा कर रहा था। इसलिए मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी भी है, यजीद नमाज को भी छोड़ता है, यजीद तारिक सलात भी है, यजीद जिना भी करता है, यजीद बदनिगाही भी करता है, यजीद लहबो लहब में भी मशगूल रहता है। जिसे ये सारी बातें पता चल जाएं, वो उसके हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता है। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हवा इस बात की लग जाए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम किसी गलत जगह पे बैठता है, तो तुम उस इमाम का पत्ता साफ कर देते हो, कहते हो हम इसे इमामत के लिए नहीं रखेंगे, हमने इसे फला जगह बैठा हुआ देखा था। अरे जब तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाए, सिर्फ शक की बिना पे तुम अपने इमाम के हाथ में अपना हाथ नहीं देना पसंद करते हो, तो वो आका हुसैन जो यजीद के जिना के बारे में भी जानता था, जो यजीद के शराब पीने के बारे में भी जानता था, वो अपना मुकद्दस हाथ, वो भी वो हाथ जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, हुसैन की शान मेरी शान है। हजरात गिरामी, अब देखिए हुसैन को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया जब मेरे आका हुसैन पर, तब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा दिया। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा फरमाते हैं। अब आइए जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ। हजरात गिरामी, ये छोटा सा काफिला लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। नाना मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने पे सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने मुकद्दस लबों से बोसा दिया करते थे। मेरे नबी अपने नवासे को सूंघा भी करते थे, अपने नवासे को चूमा भी करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ए मेरे वालिद जरा ये तो बताइए कि आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये तो समझ में आता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने नवासे को प्यार करूं तो उसे चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासे को सूंघ लेता हूं। मेरे नबी ने जन्नती फूल फरमाया है। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ और जरा देख करके सोच करके बताओ फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल पुरतरा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल फतेहगंज की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बदायूं की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पाकिस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन यही फूल अगर मदीने की सरजमीन पे खिले और फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर के खिले, नबी का नवासा बनकर के खिले, तो ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला में 3 दिन का प्यासा रखा जाएगा तब भी ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला से आवाज आएगी कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
بہت خوب ماشاء حضرات، اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء کہ اللہ۔ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے، جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے۔ میرے آقا حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو، اب مدینے میں مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے نانا آپ کا نواسا آپ سے بہت دور جا رہا ہے، اپنے نواسے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اپنے نانا کے مزار پاک سے اپنی والدہ کے مزار پاک پہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آئے، میں تاریخ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہوئی چلی جائے۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی حسن اپنے بھائی حسین کا سلام قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں بھائی حسن آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے، میں اب میرا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ میرے آقا حسین کا ہے، مدینے کے باہر سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے۔ مدینے کے بوڑھے باہر نکل کر کے آ گئے، عورتیں باہر نکل کر کے آ گئیں، بچے باہر نکل کر کے آ گئے، جوان باہر نکل کر کے آ گئے۔ بچے رو رو کے عرض کرتے ہیں آقا حسین مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ۔ عورتیں حضرت زینب حضرت شہربانو سے کہتی ہیں آپ حسین سے کہیے گا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں، انہیں دیکھ لیتے ہیں تو نانا مصطفیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آقا حسین سے عرض کیجئے مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابعین وہاں پر موجود ہیں جو عرض کر رہے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے۔ میرے آقا حسین نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، میرے آقا حسین نے عزم مصمم کر لیا تھا، مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات اب ذرا ایک بات آپ مجھے بتائیے، آپ کے کرترا میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہوگی، جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، جنہوں نے حج کیا ہوگا۔ ذرا ان حاجی صاحب سے آپ پوچھئے، اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو دل میں نبی کی محبت لے کر کے جائے، اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جائے، جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جاتا ہے وہ وہاں کے جلووں میں نہا کر کے آتا ہے، اور جو نبی کی عداوت لے کر کے یہاں سے جاتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی، مدینے کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ جب تک حاجی مکے میں رہتا ہے اسے اپنے گھر کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے اہل خانہ کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے زمین جائیداد کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے کاروبار کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنی پراپرٹی کی بھی یاد آتی ہے۔ لیکن جب وہ حاجی مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو مدینے کی مٹی میں، مدینے کی سرزمین میں یہ خاصیت ہے کہ جب حاجی مدینے میں پہنچتا ہے تو بس نبی کے روضے کا ایک بار دیدار کرنے کے بعد میں وہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بس نبی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، نبی کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے۔ نہ تو اسے گھر کی یاد آتی ہے، نہ تو اسے اپنے اہل خانہ کی یاد آتی ہے۔ آج اس وقت جو حکومت ہے سعودی میں وہ حاجی کو یا تو 8 دن مدینے میں رکھتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ قسمت کا سکندر ہے تو اسے 10 دن مدینے میں رکھ لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرات آج جو حاجی جاتا ہے وہ مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے، نبی کے روضے کا جب دیدار کرتا ہے تو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا ہے، شام ہو تب بھی درود پڑھتا ہے، صبح ہو تب بھی درود پڑھتا ہے، فجر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے۔ حضرات نبی کے جلووں میں گم رہتا ہے، لیکن جب اس کے 8 دن پورے ہو جاتے ہیں تب یہ حاجی کے کانوں میں ایک صدا آتی ہے، اس حاجی کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں دن جو حاجی آئے تھے ان کو اب مدینہ چھوڑنا ہے، اب وہ مکے کے لیے روانہ ہوں گے، فلاں نمبر کی بس فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سامان سفر باندھیں اور بس کے اندر جا کر کے بیٹھیں، اب انہیں مکے کے لیے نکلنا ہے۔ حضرات جب حاجی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو حاجی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک اضطرابی حالت ہو جاتی ہے حاجی کی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، نبی کے روضے پہ جاتا ہے حاضری کے لیے، نبی کی سنہری جالیوں کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پروردگار اگر مجھے دولت دے، مولا اگر تو مجھے زندگی دے تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا۔ یہ حاجی کی حالت ہے۔
ये हाजी शराफत हुसैन साहब हैं। आप इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की कैफियत क्या है, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे इन्होंने क्या क्या देखा है। हाजी जब मदीने की सरजमीन को छोड़ने का ऐलान सुनता है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसुओं को आस्तीन से पोंछते हुए अपने सामाने सफर को तैयार करता है, अपने सामाने सफर को बांधता है, और जब अपनी सवारी की तरफ आता है तो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के गुंबद खजरा की तरफ देखता है, और जब अपनी सवारी में बैठ जाता है तो जहां तक गुंबद खजरा नजर आता है, जहां तक नबी का रोजा नजर आता है, जहां तक नबी का मुकद्दस मज़ार पाक का मीनार नजर आता है, तब वहां तक हाजी मुड़ मुड़ के मदीने को देखता रहता है, मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता रहता है। अरे अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी के दिल की हालत का ये आलम है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हाजी जो 8 दिन मदीने में रहे, जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, जो सुबह भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो शाम को भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो फजर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो असर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो मगरिब भी मदीने में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मदीने में पढ़ता रहा, जो सुबह शाम नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने की सरजमीन पे गुजारी। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल ये है कि जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का मदीना छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। मदीना छोड़ रहे हैं मेरे आका हुसैन, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मुड़ मुड़ के मेरे आका हुसैन मदीने की तरफ देख रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने पूछा था, भाई अब आप मदीने की तरफ क्या देख रहे हैं? तब मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। मक्का मुकर्रमा पहुंचे मेरे आका हुसैन। हज जिलहिज्जा का महीना था, लोग हज करने के लिए पहुंचे हुए थे। कोई काबे का तवाफ कर रहा था, कोई सफा मरवा की दौड़ लगा रहा था, कोई मीना में कुर्बानी कर रहा था, कोई शैतान को कंकरिया मार रहा था, कोई आबे ज़मज़म पी करके अपने शिकम को सैराब कर रहा था। मेरे आका हुसैन के किसी साथी ने कहा, हुसैन बहुत अच्छा मौका मिल गया, हुसैन गोल्डन चांस मिल गया, आओ हज कर लेते हैं, आओ बहुत अच्छा मौका मिल गया है, काबे का तवाफ कर लेते हैं, सफा मरवा की दौड़ लगा लेते हैं, आओ कुर्बानी कर लेते हैं, आओ आका हुसैन शैतान को कंकरिया मार लेते हैं। तब मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है। हुसैन पे जो हज फर्ज था हुसैन ने पहले अदा कर दिया, अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है। अब हुसैन पर इस्लाम की अजमत बचाना फर्ज है, अब हुसैन पर इस्लाम का वकार बचाना फर्ज है। मेरे आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर, हुसैन के नाना ने इस इस्लाम को जब फैलाना हुआ तो मक्का छोड़ा था और मदीने आए थे, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, मक्के में आ गया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलो थोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत रात मेरे आका हुसैन मक्के से
کربلا کے لیے روانہ ہوئے. شاعر کہتا ہے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین جس سر کو کٹانے چلے ہیں. جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے. بڑے ناز سے جنہیں کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے. جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین جس سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. میرا آقا حسین مکے سے کربلا آتا ہے، شہادت میں نے بیان کر دی ہے. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگر تمام جانثار اور تمام اہل بیت اطہار، تقریباً 17 گھر والے تھے میرے آقا حسین کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی تھی کہ آپ اپنے دشمن کا پیر، آپ اپنے دشمن کا نام پیر کے ناخون سے پتھر پہ لکھ دیا کرتے تھے. اتنی طاقت حضرت عباس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کے بیچ میں جو کوہان ہوتا ہے وہ کتنا اونچا ہوتا ہے. حضرت عباس قد کے بارے میں حضرت عباس کے بتا رہا ہوں. جب حضرت عباس برابر میں اونٹ کے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اپنا دست مبارک اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے. کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت ہوگی، کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت ہوگی، کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہوگی. اسلام کا سپہ سالار میرے آقا حسین نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت عباس کو بنایا تھا. پرچم حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا. پرچم اسلام میرے آقا حسین نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا. اللہ اکبر. وہ حضرت عباس ہیں. حضرت علی اکبر کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب حضرت عباس حضرت علی اکبر بھتیجے تھے، حضرت عباس چچا تھے، لیکن حضرت عباس علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد میں لمبے تھے. جب حضرت عباس علی اکبر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو سیدھے نہیں چلتے تھے بلکہ اپنے گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے. جیسے آدمی جھک جاتا ہے نا، جھک
کر کے چلا کرتا تھا. کسی نے پوچھا کہ آقا آپ جھک کر کے کیوں چلتے ہیں, آپ ایسے کیوں چلتے ہیں جیسے کوئی رکوع میں چل رہا ہو؟ تب حضرت عباس فرماتے ہیں یہ علی اکبر جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, اور میں نہیں چاہتا ہوں میں جب ان کے برابر میں چلوں گا تو میرے جسم کا سایہ علی اکبر کے جسم پہ پڑ جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تصویر مصطفیٰ پہ عباس کا سایہ پڑ جائے, اس لیے میں ان کے ساتھ میں جھک کر کے چلا کرتا ہوں. وہ حضرت عباس بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں شبیہ مصطفیٰ. حضرت علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. اولو محمد بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. آخر میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں. ایک پرانا صندوق کھولتے ہیں, اس میں سے نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف نکالتے ہیں, اس میں سے آپ ایک مقدس جبہ نکالتے ہیں, اسے زیبتن فرماتے ہیں. نانا مصطفیٰ کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں, بابا کی ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ تلوار جو تھی اس کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا تھا؟ ذوالفقار کا معنی آتے ہیں دو ٹکڑے کر دینے والی. مولا علی شیر خدا کی تلوار کی شان یہ تھی کہ جس جنگ میں آپ آ جاتے تھے تو تلوار آپ کی جس کے اوپر پڑ جاتی تھی وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا تھا. اس لیے مولا علی شیر خدا کو تلوار کو ذوالفقار کا لقب دیا گیا تھا. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرات گرامی میرے آقا حسین ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں. اب میرے آقا حسین اپنے خیمے والوں کو اکٹھا کر کے اپنی بیوی شہربانوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے, جب سے تو میرے نکاح میں آئی تو نے کبھی اپنے شوہر کو ناراض نہیں کیا. تیرا شوہر حسین تجھ سے بہت راضی ہے, بس اتنی گزارش ہے کہ جب تو اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھے تو صبر سے کام لینا. جب تو اپنے شوہر کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر سے کام لینا. میرے آقا حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی وصیت فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب تو نے مدینے سے لے کے مکے تک, مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا, ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہی. لہٰذا جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا. جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے برچی بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا. صبر کی تلقین فرماتے ہیں میرے آقا حسین اپنے جوان بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام علی اوسط تھا. حضرات میرے آقا حسین کے 3 بیٹے, لیکن تینوں بیٹوں کے نام میرے آقا حسین نے علی پہ رکھے تھے. آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے اور مولوی صاحب سے آپ نام پوچھیں, وہ اسلامی نام آپ کو بتا دیں تو آپ کہتے ہو یہ ہمارے فلاں خاندان میں فلاں کا نام ہے, فلاں رشتہ داری میں فلاں کا نام ہے. لیکن مولا علی شیر خدا کے لاڈلے امام حسین کے 3 بیٹے پیدا ہوئے, تینوں کے نام امام حسین نے علی رکھے تھے تاکہ باپ کی بھی یادگار تازہ رہے. لیکن پکارنے کے لیے ان کو ایک کو علی اکبر کر دیا, ایک کو علی اوسط, ایک کا نام علی اصغر. اکبر بڑا والا, اوسط بیچ والا, اصغر چھوٹا والا. یہ پکارنے کے لیے الگ سے امام حسین نے پہچان کے لیے الگ نام رکھ دیا. لیکن یاد رکھو مسلمانوں میرے آقا حسین کے 3 بیٹے تینوں میدان کربلا میں ہیں, لیکن 2 جام شہادت نوش کر جاتے ہیں, ایک علی اکبر ایک علی اصغر. علی اوسط جن کا نام امام زین العابدین ہے وہ میدان کربلا میں ابھی ہیں. بخار نے اتنا کمزور بنا دیا ہے, بخار نے اتنا نڈھال کر دیا ہے امام زین العابدین کو. آپ تلوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے وہیں پر پھر گر جاتے ہیں. میرے آقا حسین نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگایا. آج دنیا کا ایک انسان یہ کہتا ہے ظالم, کہتا ہے حسین میدان کربلا میں مختار نہیں تھے بلکہ مجبور تھے. ارے میرا آقا حسین مختار تھا. آپ اس ظالم نے یہ کہا تھا کہ حسین اگر مختار ہوتے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچا پائے. حسین کے بچے یکے بعد دیگر میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اگر حسین مختار ہوتے تو حسین اپنے بچوں کو بچا لیتے. ارے میں کہوں گا ظالم سن لے,
मेरा आका हुसैन मुख्तार था, मुख्तार। मेरे आका हुसैन ने जिसे देना था उसे दे दिया, और जिसे मेरे आका हुसैन ने ये फरमा दिया कि बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तू सलामत रहेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तू मदीना भी जाएगा, उसको मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मदीने तक जाएगा, तुझे अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, तेरा वक्त अभी नहीं आया है, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। जिसे हुसैन को देना था मेरे आका हुसैन ने खुद दे दिया, और जिसे बचाना था उसे मेरे आका हुसैन ने बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा आका हुसैन मुख्तार था। हजरात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख में अभी आपके सामने बताऊंगा। मेरे आका हुसैन अब अपनी सवारी की तरफ आते हैं, अपनी सवारी पे सवार होते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आका हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, मेरे गाजी क्या यजीदियों की तलवार देख करके डर गया है? क्या यजीदियों के नेज़े देख करके डर गया है? क्या यजीदियों की बर्छियां देख करके डर गया है? क्या यजीदियों की कसरत देख करके डर गया है? तब मेरे आका हुसैन की सवारी ने अपनी जबान में कहा था, नहीं मेरे आका नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी, मैं यजीदी नहीं हूँ। मेरे आका हुसैन मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था और कह रही थी, मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को मैदान करबला में। वहां से मेरे चचा अब्बास वापस नहीं आए, वहां से मेरा भाई अली अकबर वापस नहीं आया, वहां से मेरा भाई कासिम वापस नहीं आया, वहां से मेरे 6 माह का भाई असगर वापस नहीं आया। मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब तक मैं बाबा के सीने पे अपना सर नहीं रख लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने बाबा के बाद में अपना सर किसके सीने पे रख करके सोऊंगी? मत ले जा मेरे बाबा को, बाबा के बाद में मैं किसके सहारे पे रहूंगी? मेरे आका हुसैन अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, बेटी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। ये जाबिर हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। मेरे आका हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। बहन ज़ैनब की आवाज आती है, भाई हुसैन आज तुम दूल्हा बनकर के मैदान करबला में जा रहे हो। जब नाना मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके घोड़े की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनके बुराक की लगाम हजरत जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। और जब बाबा अली जंग में तशरीफ ले जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम तुम और भाई हसन पकड़ा करते थे। भाई अब तुम मैदान करबला में जा रहे हो, भाई आज तुम सेहरा सर पे बांध के जा रहे हो, भाई आज तो तुम दूल्हा बन करके जा रहे हो। ए मेरे भाई बहन को इजाजत दे दो, तेरी बहन बाहर निकल करके तुझे तेरी सवारी की लगाम को पकड़ करके रुखसत कर सके। मेरे आका हुसैन फरमाते, नहीं बहन ज़ैनब नहीं, बल्कि तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है। मेरी बहन सब्र से काम लेना, तू बाहर मत निकलना। तुझे माँ फातिमा की वो बात याद नहीं है जब माँ फातिमा ने अपने शौहर अली से ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने पूछा था कि रात के अंधेरे में क्यों? तो कहा कि जिस फातिमा को दिन के उजाले में किसी ने नहीं देखा है उस फातिमा को रात के अंधेरे में भी कोई ना देखे। वो हजरत फातिमा का पर्दा था। मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि तुम हजरत फातिमा की मोहब्बत का दम भरती हो, तुम हजरत ज़ैनब की मोहब्बत का दम भरती हो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा मेलों में जाकर के घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के बाजारों में घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के मार्केट में घूमो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है अपने घर वालों से कहो। हजरात गिरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैदान करबला में कितना एहतिमाम किया गया है पर्दे का। हजरत ज़ैनब ने कहा, इजाजत दे दो भाई, आपकी बहन बाहर निकल करके आपको रुखसत कर सके। तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, नहीं मेरी बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, पर्दे में, बाहर मत निकलना। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हमारे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और तमाम रूए जमीन की उसके ऊपर लानत होती है। इसलिए पर्दे में रहना। मेरा आका हुसैन पर्दे की तलकीन फरमा करके अब मैदान करबला में आता है। यजीदियों को मेरे आका हुसैन ने खुद
खुतबा दिया था, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का लाडला हूँ, मैं नबी का नूरे नजर हूँ, मेरे खून से अपने हाथों को मत धो। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन दो बातों में फैसला, या तो जंग करो या यजीद की बैअत करो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने की सरजमीन को छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैअत करना होती तो मक्के की सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए, जो सबसे बड़ा तुम्हारा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारा ताकतवर सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है, 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है, एक इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी जो शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में दो दो टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने, जो उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लाडले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने, इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं मेरे आका हुसैन, सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे टेक देता है कि मेरा आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाने वाला है, मेरे आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते तू कौन है? उसने उस जालिम ने कहा मैं शिमर हूँ, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब तेरा क्या इरादा है? इसने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तो मेरे सीने से उतर जा जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। अब बताओ मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है, किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती, किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके हल्क पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदान करबला में है, उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेके आगे बढ़ जाता। वो शहजादा चाहता
किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता, लेकिन खुद मेरे आका हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत में आका हुसैन ने अपने सर को क्यों कटवाया? खड़े होते तब जामे शहादत नोश कर लेते, बैठते तब जामे शहादत नोश कर लेते, लेकिन सजदे की हालत में जाके क्यों जामे शहादत नोश किया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब इसका मैं दे रहा हूँ। सजदे की हालत में इसलिए जामे शहादत नोश किया मेरे आका हुसैन ने कि अल्लाह पाक को पूरी नमाज में अपने बंदे का जो रुकन पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। अल्लाह सजदे की हालत को बहुत पसंद फरमाता है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत क्यों पसंद है अल्लाह पाक को? कयाम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, कायदा उला भी तो नमाज है, कायदा अखीरा भी तो नमाज है, लेकिन सजदा ही अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सजदा अल्लाह को इसलिए पसंद है कि जब इंसान सजदा करता है तो वो लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो गौर करें, जब आदमी सजदे में जाता है ये सर उसका मीम बन जाता है, ये दोनों हाथ हे बन जाते हैं, ये कमर उसकी मीम बन जाती है, और ये दोनों पैर सिमट करके दाल बन जाते हैं, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन सजदे में अपने नाना की तस्वीर बन जाते हैं और सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन के सर को कलम कर दिया जाता है। जैसे ही मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था, आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, सितारों ने चमकना बंद कर दिया, अंधेरी छा गई मैदान करबला में। अब कौन है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद में एक दूसरे को देखे? हजरात, अंधेरी छा जाती है मैदान करबला में। हम आज भी रिवायतों में आता है कि खाना काबा के हर पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत पे खून का फव्वारा जारी हुआ था, बैतुल मुकद्दस की हर ईंट से इमाम हुसैन की शहादत पे खून जारी हुआ था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए थे, उफक शफक जो तुम देख रहे हो, आसमान के किनारे जो देख रहे हो, इमाम हुसैन की शहादत पे सुर्ख पड़ गए थे। मेरा आका हुसैन शहीद होता है। मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार नहीं थमा था, इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी नहीं थमा है। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। तमाम खेमों में जब आग लगी, छोटे छोटे बच्चे खेमों में थे, मस्तूरात खेमों के अंदर थीं, औरतें खेमों के अंदर थीं, अज़वाज मुतहरात खेमों के अंदर थीं। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीबी शहरबानो खेमे के अंदर, बहन ज़ैनब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी इस्तिकामत अता फरमाई थी कि आज भी रिवायतों में आता है कि इतना अहम किरदार मैदान करबला में इमाम हुसैन का नहीं था जितना हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। कितना बड़ा किरदार था हजरत ज़ैनब का, जरा तारीख उठा करके देखो। पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब बचा करके मदीने लेकर के आई है, पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब मदीने बचा करके लाई है। इमाम हुसैन की शहादत पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन था वो वही मैदान करबला तक रुक गया, लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हजरत ज़ैनब हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे के अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेमे के अंदर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाहर बिठाती हैं। उसके बाद में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पे लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला करके रखती हैं। इतना बड़ा किरदार हजरत ज़ैनब का। हजरात, हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। इस अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरत ज़ैनब को हमारा सलाम हो, हजरत ज़ैनब की इस्तिकामत को हमारा सलाम हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ला करके बाहर बिठा देती हैं, खेमों के अंदर आग लगा दी गई। इन जालिम यजीदियों ने तमाम मस्तूरात के सरों से चादरें छीन ली, जिनके सर के बाल को आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के सितारों ने नहीं
देखा था, आज उनके मुकद्दस सरों से अपनी चादरें छीन ली गई हैं। अल्लाह अकबर, कैसा कयामत खेज वो मंजर होगा। हजरत सकीना बालियां पहने हुए थी कानों में, एक जालिम यजीदी ने वो बालियां ऐसे छीनी कि आपके कानों से खून जाहिर हो जाता है, लेकिन ये सब सब्र कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को एक जालिम यजीदी ने अपने कब्जे में ले लिया। तमाम शुहदा के सरों को अपने अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन शहीद हुए थे, जुमे की नमाज का वक्त था, जब मेरे आका हुसैन ने शहादत का जाम पिया था, मैं अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब का किरदार देखो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरती हो, हजरत फातिमा से मोहब्बत का दम भरती हो। मुसलमानों, मैदान करबला का हाल सुनो, अपने सीने पे हाथ रख करके देखो। जब असर की नमाज का वक्त आता है, तब हजरत ज़ैनब तमाम मस्तूरात से फरमाती है कि अब चलो असर की नमाज का वक्त आ गया है, चलो असर की नमाज पढ़ लेते हैं। घर की औरतों ने कहा था कि यहाँ पर पानी कहाँ है, आप फरमाती हैं पानी नहीं है तो तयम्मुम से तयम्मुम कर करके नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि हमारे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता है। ए मुसलमानों, ये नाना मुस्तफ़ा का फरमान है। हजरत गिरामी मेरे नबी फरमाते हैं जो फजर छोड़ दे उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, जो ज़ोहर को छोड़ दे उसके रिज्क से बरकत खत्म कर दी जाती है, जो असर छोड़ दे उसके जिस्म से ताकत खत्म कर दी जाती है, जो मगरिब छोड़ दे उसके औलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचता है, जो इशा की नमाज छोड़ दे उसकी नींद से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसकी नींद से आराम खत्म कर दिया जाता है। कभी देखना इशा की नमाज जो पढ़ करके नहीं लेटते हैं, पूरी रात बेचैन पड़े रहते हैं बिस्तर पे, पूरी रात बेचैनी में गुजारते हैं, और जो इशा की नमाज पढ़ के लेटता है वो अपनी बिस्तर पे आराम से सो जाता है। अरे रिवायत में आता है कि जो इशा की नमाज पढ़ के अपने घर पे कोई खुराफात न करे, कोई नाजायज काम न करे, कोई टीवी वीडियो न देखे, आराम से आकर के नबी पे दुरूद पढ़ के कलमा तैयब पढ़ के बिस्तर पे सो जाए और फजर की नमाज में उठ जाए, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए ऐसा है जैसे उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की है। कितना बड़ा अल्लाह पाक ने तुम्हें अज्र दिया है। लेकिन समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं चलो असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की नमाज पढ़ो। हजरत गिरामी असर की नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करने का हजरत ज़ैनब हुक्म देती हैं। हजरत रात की अंधेरी छा गई थी। अब यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब इनको खाना और पानी तो मिला नहीं है, चलो अब ये औरतें बची हैं इनको खाना और पानी भेज देते हैं। अब यजीदियों ने सोचा किसके हाथ भेजें, तब हजरत हुर की बीबी को पसंद करके लाए, पटा करके लाए। बोले चलो तुम ही जाकर के खाना भिजवा सकती हो, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ज़ैनब तलवार लेकर के बाहर बैठी हुई थी, फरमा रही थी मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरफ दिया है कि मैं शेर खुदा की बेटी हूँ। है कोई आए जरा मेरे सामने। तलवार हाथ में ले ली थी मौला अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार, मौला अली शेर खुदा की लाडली बैठी है, कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुर की बीबी को खाना दिया, पानी दिया, कहा जाकर के तुम ही दे करके आओ। हजरत गिरामी अब हुर की बीबी आती हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा कौन है वहीं पर रुक जाए। उसने कहा मैं हुर की बीबी हूँ। कहा किस लिए आई हो, कहा खाना और पानी लेकर के आई हूँ। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया जब पानी की जरूरत अली असगर को थी तब तुम कहाँ थी, जब पानी की जरूरत सकीना को थी तब तुम कहाँ थी। अब तो पानी की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है, अब तो खाने की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। हुर की बीबी ने कहा कि मैं तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूँ। मेरे शौहर ने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है, मुझे उसका बदला दीजिए। उसका बदला ये है कि ये खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख लिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सकीना को होश में लाती हैं, इरशाद फरमाती है बेटी सकीना ले ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा क्या हमारे चचा बस पानी लेकर के आ गए हैं। हजरत ज़ैनब ने फरमाया नहीं बेटी, ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत
सकीना ने कहा फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटी हम पानी कैसे पिए? नाना मुस्तफ़ा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा अच्छा नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। जहाँ शोहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई। फरमाया बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे। वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शोहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा हाँ मेरी फूफी ज़ैनब मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है ए मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफ़ा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा लिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा सबसे बुलंद नेज़ा इमाम हुसैन के सरे मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं ए शिम्र मरदूद देख ले, तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने नबी का वंश खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई नाम लेवा नहीं होगा। अरे देख ले मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह तारीख सुनते हुए चले। अब ये सर चल रहा है, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है। कूफे से पहले एक गिरजा घर पड़ा, वहां के राहिब ने देखा कि ये सरों को नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम कहाँ जा रहे हैं। उस राहिब ने पूछा था ये किसका सर लेकर के जा रहे हो? तो एक ने कहा कि एक बागी का सर लेकर के जा रहे हैं माज़अल्लाह। उस राहिब ने कहा कि किसका? कहा ये इनका नाम हुसैन है। उसने कहा अरे वही हुसैन जो नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे हैं, वही हुसैन जिन जो तमाम नबियों के सरदार हैं उनके नवासे हैं। उसने कहा हाँ हाँ वही हुसैन। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने कहा तुम्हें गैरत नहीं आई? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का नाम लेते हो, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, उसी नबी के नवासे का सर काट करके ले जा रहे हो। उसने कहा 10,000 दिरहम दूंगा तुम्हें मैं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे।
آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے. دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک. یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم یزیدی آگے بڑھے تھے تب حضرت زینب نے ایک نظر کربلا کے میدان کی طرف ڈالی تھی, اور جب اپنے بھائی حسین کے جسم پاک کو میدان کربلا